Mantam. Yeah, Nasim. TikTok, how are you, Alia? I'm fine. Am I too early? No. We are just joining in. All the students are just joining in. Actually, we were having another session, so we have to switch our links. So we were having sessions on business etiquettes and personal grooming. The student had Okay. another session. So you are having another one. Thank you so much for joining in, Alia. Thank you so much for the invite. So लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस उतनी इफेक्टिव हैं जितना इन पर्सन है? Somehow they are effective. Students are like, obviously some students do have power breakdowns or sometimes they are internet connectivity issues, but still more or less students are there. ये कनेक्टिविटी इज अ मेन इशू. हाँ, exactly. आई होप कि यहाँ Connectivity. पे भी सेशन चलता रहे. मेरे घर में कोई नेट का इशू ना हो. But let's see. Okay. So we start 11, right? I will start at 11. Do you want me to share your slides or you can operate yourself as well? नहीं, अगर आप मेरे को दे देंगे ना तो वो मैंने अपने एक हिसाब से I have to run चलो that. ठीक है. I'll just open that. Yeah. So how many students are in the class? वैसे तो the strength is 32. Let's see how many are going to join right now. You said it's mandatory to join. So we better Exactly, join. it's mandatory to join. And it's their mandatory classes because we are having proper attendance for every class because it's a recorded section. So easily I can get who is attending and who is not attending in the sessions or who are skipping. So आपका ये mandatory होता है when they come online तो जो cameras needs to be on, is it mandatory? For the cameras, I don't make it mandatory. Otherwise, net slow हो जाता है speed. So that's how it's like कि हम net की वजह से इसको नहीं करते. Students के camera off होते हैं. Only my being the host, my camera is on. But if you want to, we can do that as well. There's No, no issue. I'm okay. मैं तो वैसे ही check करता. I was just being a bit devil. How do you know कि camera online आके पीछे कम से हो नहीं रही? Because you know we have been Exactly. I know. फिर Now this is the time students have to like be themselves if they are that much dedicated or they would be there. Otherwise, आप उस पे बिल्कुल एक वो नहीं कर सकते. learning की अगर ownership नहीं होगी तो बहुत मसला आ जाए. फिर आप you can't do anything. I think इसके ऊपर आप वो नहीं कर सकते. What you call that? स्लाइड शो नहीं चला सकते ना वरना ये विंडो खराब हो जाएगी, है ना? You can do that. Can we? Okay, let me check. मुझे यहाँ पे आइकन नहीं दिख रहा है. Can you put it on slideshow for a second? Okay. Oh, perfect. This is good. So आपको कितना अर्सा हो गया यूनिवर्सिटी के साथ? So okay, let me brief you. It's like I have been associated to DHS Sofa University since like around 5 years now, 5.5 years. I've been associated with DHS Sofa University. So currently, I am seeing Department of Career Services and Alumni Relations, as well as I am a faculty. So I'm teaching courses regarding HR and all the specialization courses. Like this course is professional development. It is basically for our students of like senior students, graduating students of BBA 8. Nice. So Alia, will start with your introduction first.
You can start with the introduction and then we'll proceed further. So we shall start formally. I guess what's the time? It's just 2 minutes away. Yes, you can start. You may start. Okay. 2 minutes पे रुक जाते हैं. I think अभी still it's not 11 as yet. हाँ, because student would be joining. So let me see how many have joined. वर्क फ्रॉम होम का सबसे बड़ा इशू ये है कि आपका रूटीन नहीं बन पाता. No matter how hard you try, you just cannot exactly, like because you can't. वो कहते हैं ना, आप उनको बिल्कुल प्रेशराइज नहीं कर सकते. It's like on their own will. If they're ready to go that, if they want to learn something, they would be there. They would be asking questions, and it would be a engaging one. But still, there are ups and downs. Welcome, Annie. Welcome on board. We have another member from Feroz 1888. That's Annie. She's my learning L&D manager. Okay. So far, we have 22 participants who have joined. Let's see. Meanwhile, in between the session, students can join. वही वाली बात है, वो join in होते रहेंगे साथ-साथ भी. ठीक है. So we can start, right? Yes, you may. Okay, I think it's 11, so we can start. Assalamu alaikum, everyone. Yes, Annie just raised her hand. Do you have a question? Annie, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, Annie. Good to see you. Okay, so we can formally start. Assalamu alaikum, everyone. Welcome to this online class. आप तो used to हैं और I hope कि adjust भी हो गए हैं इस the new normal से कि जहाँ classes आपकी at ease है. In a way कि online है, आपको तैयार होके ऑफिस या यूनिवर्सिटी जाना नहीं पड़ता है, तो it's a good thing. So आज का जो सेशन है, मे बी मिस सेसी ने आपसे डिलीवरेबल्स शेयर किए होंगे जो आपने लीफलेट में भी देखा था. हम 3 चीज़ों पे बात करेंगे, राइट? पर्सनल विजन, कॉर्पोरेट एथिक्स एंड द बेंच लर्निंग. और सेशन का इंटरेस्टिंग रहेगा. अगर आप सवाल पूछते रहेंगे तो फिर नॉलेज शेयर होती रहेगी. मैं भी आप लोगों से सीख लूँगी. थोड़ा बहुत जो मेरे पास है हम उसको शेयर कर लेंगे. I can give a brief introduction about myself. Resume slideshow कर लें. Tejin, can you help me out here? ये resume नहीं हो रहा. Okay. Because Ali, you are controlling the screen. अच्छा, क्योंकि मेरे पास जो है ना ये. अच्छा, I'm controlling the screen now. This seems to have stuck somehow. I don't know. Okay. Ma'am, I think आप screen share अगर बंद करके वापस खोलेंगी, that would solve the issue. Okay. Let me do that. Okay, perfect. Thank you so much. So we thought कि हम जब बात कर रहे थे कि सेशन को क्या नाम दे, तो we said हम कह सकते हैं the future me, because we would be talking about what all we have to do so we can prepare ourselves for the future. I know future किसी ने देखा नहीं है, लेकिन थोड़ी सी prep जो होती है वो हमेशा अच्छी रहती है. So again थोड़ा सा अपने introduction से start करते हैं. I've got total 19 years of experience. जो कि अभी कंटिन्यू है 19.4, तो होपफुली बहुत जल्दी अल्लाह ने चाहा तो 20 साल हो जाएंगे. सो HR में मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 14+ इयर्स का है, मेनली विद 2 कंपनीज, मेनली विद फिरोज 1888, बिकॉज मुझे उनके साथ ऑलमोस्ट 14 साल हो गए हैं. और व्हाइल आई वाज एसोसिएटेड विद देम, वर्किंग विद देम एज एन एडवाइजर, आई जॉइंड एन MNC which was Ipsos, was a market research company. So I was their country head for 1 year's time. Then I left and I'm fully working for Feroz 1888. My academics is I've done my master's in clinical psychology. I've got a PMDP in clinical psychology from Institute of Clinical Psychology. And then once I entered into HR field, so over time I have done my CHRP and strategic HR management courses as well. So एक्सपीरियंस में अगर हम स्टार्ट करें, आई इनिशियली स्टार्टेड विद आगा खान यूनिवर्सिटी. उनका एक कम्युनिटी हेल्थ साइंसेस का डिपार्टमेंट है जहाँ पे वो बेसिकली डिफरेंट रिसर्च करते हैं.
So the first project was about the depression in community women. So there was a survey, फिर हमने वहीं के लोगों को सिलेक्ट करके उनको काउंसलिंग के लिए ट्रेन किया था और फिर उनको सुपरवाइज किया था और फिर पोस्ट काउंसलिंग की रिजल्ट्स देके डिप्रेशन कितना रिड्यूस हुआ है. तो दैट वाज अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस. Then I joined Institute of Behavioral Sciences जो कराची में है, स्पार्को पे, which is now at that time later known as Dr. Abdul Qadir Khan Center. तो psychiatric outpatient facility थी, तो वहाँ पे I was working as a clinical psychologist. Then moving on, I joined psychology department for a year and a half, I believe. अपने खुद के डिपार्टमेंट में पढ़ाया था. Then we moved to Islamabad, तो वहाँ पे फाउंडेशन यूनिवर्सिटी एक है, वहाँ पे थोड़ा सा पढ़ाया था. And then country head HR, ये सब चीजें जो है ना बीच बीच में होती रही हैं. So थोड़ा सा शायद आपको लगे कि लिंक missing है. And then currently I'm working as Deputy General Manager HR at Feroz 1888 Mills. So Feroz is basically a towel manufacturers and exporters. हमारा 100% का export है. हमारी 1800 की management strength है and somewhere around 9000 का जो है non-management का strength है. We are only operational in Karachi. Just one unit is at hub. So ये है छोटा सा प्रोफाइल, थोड़ा बहुत HR से यहाँ से सीखा है और उसको अप्लाई कर रहे हैं. So okay, moving on, आज के सेशन पे चलते हैं. पहली चीज ये है कि what is the value of having a personal vision, which is very essential कि हम जो भी अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं, you know, we need to have a vision, एक गोल होना चाहिए जिसके लिए फिर आप चीजों को सेट करके एक पाथ बना के काम करना शुरू कर दें. So I believe everybody is there and they must be having some pen pencil with them. आपको स्क्रीन पे ये आप चीजें दिख रही हैं, right? ये different pursuits in life हैं जिनके लिए हम तगदाव कर रहे थे and we are just striving our level best to achieve all these things in our life. So यहाँ पे जो randomly नाम है, efforts, fame, popularity, happiness, impact, look cool, money, prestige, excellence. Now if you guys can work it out and just arrange them least happening thing as long as the pursuit of life is concerned to the most priority set करते हैं downwards से upward. Can you guys do that and then we can take the session from there onwards. फिर हम इसको version से link कर देंगे. Okay ma'am. Yes. So priority set करनी है. सबसे lowest platter पे कौन सा pursuit in life है जिसके लिए हम मेहनत कर रहे होते हैं, जिसके लिए हम चाक कर रहे होते हैं, और highest level of pursuit in life क्या है. And I would really appreciate if somebody can actually share their list. एक से दो अगर opinions आएंगे तो अच्छा interactive मजा आएगा. Guys, you can type in the chat and you can write over there. Yes, we have one. Ma'am, okay, the pattern you're following is from the least to the most, right? The least to the most. तो Okay, ये ऑटो पे क्यों आ रहा है तसीम? Can you oh, this is coming on auto. Yes. Oops. Oh, thank you for saving me. Okay. Yes, learning is the priority. अभी यानी का जो reply है सबका. But from this list, अगर हम from least to top पे जाएं, तब अगर हम सिर्फ इस list पे अगर अभी बात करें. So ma'am, can I share my list? जी please. Farzan Azhar, right? Yes ma'am. Yeah, please. So starting from the least, the first one would be look cool, then fame, popularity. Sorry, Farzan, can you type it down so that I can read and connect? Sure ma'am. हाँ प्लीज, फिर आप करेंगे तो फिर आसानी रहेगी मुझे याद रखने में भी.
I would suggest कि बाकी क्लास भी अपने टाइप कर दे वहाँ पे आंसर इन द चैट so that we have the idea. So थोड़े से एक दो responses होंगे. हाँ. Collectively that would be like what's your like the most pursuit in life, like from the highest to from the lowest till the highest. Yes, Farzana, are you typing something? Yes, I guess. Okay. Farzan says कि आपका जो top है, that is look cool. Ma'am, that's the least. I start from the least. Okay. The least is looking cool, and then fame, फिर money, फिर impact, फिर prestige, फिर excellence, फिर effort. Happiness कहाँ गया? You don't want to be happy? I'm sorry, ma'am. I just missed that. That would be after the effort. I'll send that again. No. बस ऐसे ही बता दो, कोई मसला नहीं. तो looking cool के दरमियान प्रेस करूँ, मनी से पहले करूँ, मनी के बाद करूँ, कहाँ प्रेस करूँ? Ma'am, I think in the top tier, I think after excellence, because obviously अगर एक happiness है तो आप फिर life में आगे कुछ अपने लिए plan करते हो. If you're not happy, तो फिर तो आपको कोई goals या कोई चीज पे matter ही नहीं करेगी आपके लिए. Okay, interesting. So, जो effort है, what comes to your mind when you say कि effort? Ma'am, by effort I mean कि regardless आप जिस situation में भी जा रहे हो, whether it be अगर आपको किसी भी तरह का task दिया हुआ है, तो आप पहले से ही एक चीज determine ना करो कि अगर for example मुझे नहीं आता तो मैं कर ही नहीं सकता. आप उसमें effort डालो, maybe look it up, आप guidance ले लो ताकि आपकी लाइफ में एक प्रैक्टिस बन जाए कि कोई भी सिचुएशन आए आप उसकी तरफ काम तो करो, rather than आप पहले कोई excuses सोच रहे हो कि मैं नहीं कर सकता या मैं क्यों नहीं कर सकता. Okay. What about excellence? What is excellence to you? Excellence definitely matters a lot because like they say कि it's not necessarily कि आप 1000 काम करो लेकिन अच्छा ना करो और अगर कम काम करो तो अच्छा करो, तो कोई भी काम करो उसमें excellence तो होनी चाहिए. ठीक है, fair enough. So, do we have any? Why looking cool is the least priority? You think कि हम already cool हैं तो हम इसके लिए और क्या मेहनत करें, या you think it's not that important? चलता है इसके बगैर भी, cool or no cool? Ma'am, it's in my personal opinion it's not really worth it because looking cool तो फिर वही बात हो गई कि आप अलग से एक show off कर रहे हो, तो what's the point of that? अगर आप में एक natural grace है तो बंदा वैसे ही आपको पसंद करेगा, आपको compliment करेगा, rather than आप उसके लिए specifically act कर रहे हो. So, do you think इंसान के अंदर, मतलब अपने के फरजान से बात चल रही है, this does not mean the question is not for others. Do you guys think कि लोग हमें पसंद करें ये जरूरी है? हम अपनी जिंदगी को इसी तरह प्लान करें just because people can like us or can say कि यार क्या बंदा है? To be honestly, to some extent yes, because हम सब में कुछ ना कुछ होता है कि कोई हमें appreciate करे, whether वो काम के लिए हो या हमारे character के लिए हो, तो to some extent definitely होता है कि लोग आपको पसंद करें, because वो फिर आपको एक next step देता है कि आप आगे की तरफ motivation देता है कि अच्छा काम करो ताकि आपको और अपने boss से शाबाशी मिले या आपके colleagues आपको acknowledge करें. Okay, ठीक है. Can we have one more list? Can any other student को अपना कुछ share करेंगे? मेरे ख्याल से पर्सनल लाइफनेस इज मोर इम्पोर्टेंट. मतलब आप अपने आप को खुद पसंद होने चाहिए, बाकी फॉर द रेस्ट ऑफ देम तो इट्स नॉट दैट मच कि आप ऐसे एफर्ट्स डाल रहे हैं कि एवरीवन शुड लाइक यू. You yourself should like yourself first, and then that's the most important thing. That will make you much more happier than making others like you. Okay. Your name is please? Kinza. Kenza, can you type your list? My list? How would you prioritize these things from the least happening pursuits in life to the most happening pursuits in life? Okay. Yeah. Yes, Manib, you were saying something?
बस आई एम शेयरिंग माय ओपिनियन। जो लुक कूल वाली बात हुई थी, मैं उसी पे कह रहा था कि मतलब बंदे को किसी को दिखाने के लिए नहीं अपने आप को चेंज करना चाहिए। जैसा बंदा है वो वैसे ही रहे, तो लोग खुद ब खुद, अगर वही बात होगी प्रधान वाली कि अगर आप में ग्रेस है तो लोग खुद ही अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ, वरना आई डोंट थिंक सो कि किसी के लिए अपने आप को चेंज करें, मतलब किसी को शो ऑफ करने के चेंज कर सकते हैं ना मनी। लिए। मैं खुद आपकी के लिए आवाज, अपने आप को चेंज कर, खुद के लिए तो अपने आप को चेंज कर सकते हैं, राइट? किसी के लिए ना इसमें करें तो इंसान अपने आप को खुद पसंद आना चाहिए, बाकी सबकी खैर। हाँ, वैसे ये कॉन्सेप्ट ट्रूली राइट नहीं है अगर आप पूछें तो, बिकॉज हम दुनिया में अकेले नहीं रह रहे, वी आर लिविंग अराउंड विद पीपल, तो कहीं ना कहीं हमें एडजस्ट करना पड़ता है, नॉट बिकॉज टू लुक कूल और लोग ये करें, बट मेरा ख्याल से ह्यूमन इंटरेक्शन डिमांड सम फ्लेक्सिबिलिटी इन आवर पर्सनालिटी। तो हम लेकिन ये मैं नहीं कह सकते सेल्फ हमारी सेटिस्फेक्शन भी जो कुछ चीज़ होती है ना, कि अगर हम बात करने पाए तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन इज समथिंग एल्स, कि इंसान अपना अगर अपने आप से सेटिस्फाइड है तो फिर डजंट मेक सेंस कि आप बंदा सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है। अग्रीड अग्रीड, आपको अपने आप से सेटिस्फाइड होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है कि आप सेल्फ सेटिस्फेक्शन से नार्सिसिज्म में ना चले जाएं, सेल्फ सेटिस्फेक्शन से सेल्फ लव में ना चले जाएं, दैट्स वेरी डेंजरस, गेट माय पॉइंट। और इसको भी हम एक आध मेरे पास लिस्ट और आ जाए तो फिर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट्स हैं क्या और पीछे व्हाट आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट, और फिर हम इसको अपने विजन से लिंक करेंगे। थैंक यू। Thank you, Mani. Yes, I'm waiting for the list. Anyone? So, Annie, you want to add something? Just Annie raise her hand. So, Annie, you want to add? I'm not touching the screen. वो चीजें मेरी ऑटो पे आने लग जाती है। Yes, Annie. अस्सलाम वालेकुम आलिया, मुझे ना शायद आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है, मेरा नेट का प्रॉब्लम होगा। मेरे साथ मैंने एफर्ट मिस किया इन द स्टार्ट, जो हमारी ऑन द टॉप ऑफ द प्रायोरिटी आना चाहिए। एंड जो ये वाली बात थी ना कि जो अभी वन ऑफ द पार्टिसिपेंट वाज कि हमें अपने आप से सेटिस्फेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई बिलीव कि अगर जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो फॉर मी हैप्पीनेस इज ऑन वन ऑफ द फ्यू टॉप्स। तो उसमें वन ऑफ द फ्यू टॉप्स में हैप्पीनेस, इम्पैक्ट एंड एफर्ट आई बिलीव शुड बी ऑन द टॉप, एटलीस्ट फॉर मी is on the top। लेकिन मेरे ख्याल में effort is something linked primarily with me। तो जैसे मतलब मैं अगर बात करूं तो happiness is my desire, impact is my desire to have on others, लेकिन effort is essential। तो आई एम नॉट श्योर कि अगर एक मेरी डिजायर लिस्ट है तो मेरे अपने लिए मुझे हैप्पीनेस और अपने लिए मैं पसंद करती हूँ कि मैं इम्पैक्ट क्रिएट करूँ ऑन द सोसाइटी एंड राइट इम्पैक्ट ऑन पीपल। और एफर्ट इज समथिंग व्हिच आई बिलीव इज एसेंशियल टू पुट इन टू गेट दीज स्टफ जो कि मेरी डिजायर लिस्ट है। ओके, ठीक है, इसको आगे लेके चलते हैं। एक इंसान ने अपनी लिस्ट दी है फ्रॉम द लीस्ट टू द हाईएस्ट: लुक कूल, फेम, एक्सीलेंस, प्रेस्टीज, मनी, इम्पैक्ट, एफर्ट एंड हैप्पीनेस। नाउ आई विल शेयर माय लिस्ट विद यू। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप लोग चाहें तो सेशन के बाद यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा 8 लेवल्स ऑफ पर्सनालिटी बाय नुमान अली खान। उसने ये चारों कॉन्सेप्ट बहुत बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किए हैं। सो मैंने इनको लिंक किया है सुनने के बाद कि हम जब भी अपनी लाइफ का विजन बनाते हैं, कोई मकसद अपने सामने रखते हैं, तो हमारे ये जो 8 एरियाज हैं ये अपनी जगह पे होने चाहिए, जिस तरह बीइंग अ मुस्लिम और बीइंग अ ह्यूमन हमसे एक्सपेक्टेड है, राइट? सो डू वॉच दैट वीडियो, इट्स अ ब्यूटीफुल वीडियो। सो व्हाट दिस पर्सन सेज, ही सेज कि इन तमाम परसूट से लाइफ में से जो लीस्ट है, जो सब लेडर के सबसे नीचे है, वो है आपका हैप्पीनेस। ओके, इट्स नॉट कमिंग। I'm trying to click. Just a second. Okay. तो he says कि okay, fine, आने दो। He says कि lowest ladder पे जो चीज है वो है happiness, क्योंकि happiness के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती।
You get up in the morning, Miss Tehseen sends you an email कि भाई आज का सेशन कैंसिल हो गया है 9 बजे 11 बजे वाला, तो you sleep for 3 more hours and you are happy. You know, आपका कोई टेस्ट है और आपकी स्ट्राइक हो जाती है, आपका टेस्ट पोस्टपोन हो जाता है, and then you are what? You are happy. आप थके हारे घर से बाहर से घर आते हैं और आपका फेवरेट खाना पका हुआ है, you are what? You are happy. You know, आप बहुत बोर मूड में बैठे हुए हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड की एकदम से कॉल आती है, आप मोबाइल उठा के उसका नाम देखते हैं, and it puts a smile on your face, which means you become happy. So this guy नुमान अली खान he says कि आपको खुश रहने के लिए ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, जिंदगी में हजारों इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे आप पिक कर सकते हैं, and then you end up being happy. So pursuit in life should not be happy because वो तो आपके सामने है, anything can make you happy. It does not have to be a very great and large thing to happen in your life and you'll smile and you'll be happy. But then having said that, there are certain people in this world जिनके लिए happiness is equivalent to 6-figure salary. उनके लिए happiness is equal to XYZ things. मैं जब जिंदगी में इस मकाम पे पहुंच जाऊंगा तो मैं खुश हूँगा. This does not happen in the real world. होता है बट ये रियलिस्टिक नहीं है. अगर हम में से कोई भी ऐसी कोई माइंडसेट रखता है तो ये हमारे अपने विजन जब हम फॉर्मुलेट करेंगे तो उसके लिए सही नहीं है. देन ही सेज कि हम जिंदगी में लुकिंग कूल और फेम एंड पॉपुलैरिटी और एक और जो प्रेस्टीज है मैं उसको भी इकट्ठा कर लेती हूँ. हम इन 3 चीजों के लिए जो है हम काम कर रहे होते हैं. फर्स्ट, जब हम वी वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द कूल पर्सन. हम नहीं चाहते कोई हमें बोले ये डब्बू है और ये तो ऐसी है, ये तो माटी है एंड ऑल दैट. हम इन वर्ड से चिढ़ते हैं और हम उन वर्ड से चिढ़ने से हटने के लिए ऐसी बहुत सारी चीजें कर जाते हैं जो कि मे बी मेरी पर्सनालिटी का पार्ट नहीं है. There might be a lot of you who might say कि ना मैं तो ऐसा नहीं करती, मैं तो ऐसा नहीं करता, I have zero issues with that. नहीं करते, बहुत अच्छी स्टोरी है. But then एक पर्सनल इंसाइट की जरूरत है, क्या मैं वाकई में ऐसे नहीं करती. I'm going to a party, I have a lot of new dresses in my wardrobe, but ऐसे कि नहीं यार ये तो मैंने फलां की पार्टी में पहन लिया था, आज वो भी होगी, let me buy something else. So you are actually trying to look cool, fame, popularity and prestige के चक्कर में जो है ना कहीं फंसे हुए हैं. तो ये बहुत छोटे एग्जांपल्स हैं जो हमें बताती हैं कि हम अपने मकसद पे सही तरह से जा रहे हैं कि नहीं है. So there is a phase usually college students में, और अब तो मुझे लगता है स्कूल के बच्चों के अंदर भी ये looking cool and fame and popularity and prestige का ये जो परसूट है ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है. Then you reach to a stage जहाँ पे आपको फेम एंड पॉपुलैरिटी चाहिए होता है. आप ये जितने भी आपके सिंगर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, इनका देख लें. every new time there is a ये ऑटो पे क्यों चल रहा है हमारा, सॉरी, every time हर थोड़ी देर के बाद ये लोग जो है एक अपना नया एल्बम निकाल देते हैं, कोई नया सिंगल आ जाता है. व्हाई? बिकॉज दे वांट टू रिमेन इन दी न्यूज. और जब ये कोई अपना सिंगल या अपना कोई एल्बम नहीं निकाल पाते तो दे एंड अप गिविंग सम कंट्रोवर्शियल बयान जिसकी वजह से ये लोग दोबारा से खबरों में आ जाते हैं. दिस इज समथिंग, पॉपुलैरिटी का एक इंसान को चस्का होता है. द मोस्ट फेमस बॉय इन योर स्कूल, द मोस्ट फेमस गर्ल इन योर स्कूल, you still remember, right? And then consciously unconsciously maybe we want to be recognized as the person जिसको टीचर्स आज भी याद रखें. उसके लिए हम बहुत पापड़ बेल रहे होते हैं. वो पापड़ जितने अच्छे बेलेंगे वो अच्छी बात है, पॉजिटिवली बेलें तो अच्छा बात है. प्रेस्टीज का भी मैंने आपसे कह दिया कि वी फील इट गिव्स अस अ हाई जब हम कहते हैं कि उसमें जो नुमान अली खान ने एग्जांपल दी थी बड़ी इंटरेस्टिंग. I was in Harvard last week and everybody was like, wow, you went to Harvard. I went to Harvard, right? Or everybody gets impressed and all that, but you you went to Harvard to pick up your friend. Maybe you did not actually went to Harvard to study, right? So again ये वो तमाम चीजें हैं कि हमें इस किस्म की चीजें अपने साथ टैग करके we went to IBA, we went to LUMS, हमने LUMS का कोर्स किया था, हम इस साल अपनी समर वेकेशंस पे डिज्नी गए थे. हमें सवाल जाते हुए शर्म आती है तो हम तो भाई डिज्नी चले गए थे. अनकॉन्शियस लेवल पर जितनी आपकी तमाम चीजें चल रही होती हैं. सो इस अगेन ये वो तमाम चीजें हैं जो हमारी जिंदगी का मकसद बनने लग जाती हैं और अगर हम उनको नहीं रोकते हैं तो फिर जो आपका विजन है, जो आप हासिल करना चाहते हो इन द ट्रू लिटरल सेंस फॉर व्हिच ह्यूमंस और मुस्लिम्स आर क्रिएटेड, वो डिस्टॉर्ट हो जाता है. यानी इसके फिर एक चीज होती है, लोग पैसे के पीछे भागते हैं, राइट? आई एम नॉट सेइंग कि गलत भागते हैं या क्या, उसके लिए वो मेहनत भी करते हैं, राइट? बट देन आप बहुत देखें कि
you're not able to give quality time to your children. अगर husband है and then वो कोई business कर रहे हैं या वो कोई job कर रहे हैं, right? So वो सुबह के क्या शाम के 10 बजे आ रहे हैं, रात के 10 बजे, महीने के आखिर में एक 10 लाख का चेक सैलरी का मिल जाता है, फैमिली के हैंड ओवर कर देते हैं, पिकनिक्स मन रही हैं and all that, but you're not spending quality time with your kids. Or once you are actually old in that बड़ा सारा hello, once you are actually old in that बड़ा सारा घर, your kids are not there because they are not used to spending time with you. So this pursuit of money has led you to nowhere. At that time आपको आसाइशें कुछ ख्याल में नहीं आने वाली हैं, right? तो अगेन ही सेज कि ये जब आप अपना विजन ड्राइव करें, फिर मैंने उसको कनेक्ट किया कि जब अपना विजन ड्राइव करें तो ये चीजें थोड़ी these should not be the focus. Then he says कि 3 चीजें हैं जिसके लिए एक्चुअली मे बी हम मुसलमानों को या हम इंसानों को बनाया गया है, excellence, impact and efforts. Now excellence, anybody can share excellence क्या है, बिल्कुल true literal meaning excellence का क्या है, what exactly can be called excellence? Is somebody talking in the back? I can hear, but I can't hear properly. Yes, guys, you all need to mute your mics. I'll mute my mic as well. Let me know what do you guys think exact. अभी एक ने define की थी, but then exactly excellence की कोई अगर आप मुझे example दे सकें. Okay, I think mics का कोई मसला ना हो. I'll let you know. Excellence something कि how you are improvising your work every other day. आज आप जिस तरीके से अपना असाइनमेंट में से सीन को जमा कराते हो, सबमिट कराते हो, जो उसका क्वालिटी है, जो उसका कंटेंट है, क्या वो वैसा ही है जैसा आपने 2 महीने पहले उनको असाइनमेंट जमा कराया था? अगर वो उससे बेहतर है तो यू आर वर्किंग ऑन द पैरामीटर्स ऑफ एक्सीलेंस. अगर वो उस जैसा ही है तो आप भले से एक्सीलेंस का शोर मचाते रहें, you are not working on excellence. Is as simple as that. So excellence is becoming better each day, and then there is a competition with your own self. Yes, excellence is a journey of continuous improvement. रानी कह रही हैं, right? So मेरा हर दिन मेरे आने वाले दिन से बेहतर होना चाहिए, तभी मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाऊंगी, लर्न कर पाऊंगी. Otherwise 10 years of experience doing the same thing over and over again in exactly the same manner is equal to 1 year. कि 20 साल का एक्सपीरियंस 2 साल हो जाएगा, 30 साल का एक्सपीरियंस 3 साल हो जाएगा, नथिंग मोर नथिंग लेस. देन ही सेज कि जब आप एक्सीलेंस के लेवल से ऊपर जाते हैं परसूट इन लाइफ, फिर आप कहते हैं कि जी मैंने अपने लिए तो बहुत कुछ कर लिया और मैं स्टिल कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, मैं दूसरों के लिए क्या कर सकती हूँ? दिस इज द इम्पैक्ट. हम कहते हैं, आई होप यू गाइस डोंट गेट ऑफेंडेड, लेकिन जो फ्रेश ग्रेड्स होते हैं, जब हम उनसे इंटरव्यू कर रहे होते हैं कि जी आप दुनिया में नहीं, सॉरी, आप जॉब मिलेगी तो आप क्या करना चाहते हैं, तो दे सेड कि जी आई वांट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट. और व्हेन आई से कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट, तो वो कहते हैं कि जी हम ना कोई गैजेट डेवलप करना चाहते हैं, हम कोई ऐसा काम कर देना चाहते हैं कि फिर हमारी इन अ वे यू नो अनकॉन्शियसली दे वांट टू से कि मे बी हमारी वाह हो जाए और हमारी तरक्कियां जल्दी हो जाएं, तो हम ऐसा कोई इम्पैक्ट लाना चाहते हैं कि जो कंपनी में हमारा नाम हो जाए. इम्पैक्ट इज बेसिकली व्हेन यू डू समथिंग that can change the lives of others, not your own life. वो excellence में आता है, right? So impact is something in which आप चाहे किसी भी लेवल पे, फैमिली के लेवल पे, रिलेशनशिप्स के लेवल पे, सोशल लेवल पे, रिलीजियस लेवल पे, whatever, आप कुछ ऐसा करो कि उससे दूसरों की जिंदगियां बेहतर होना शुरू हो जाए, मिजरेबल ना हो. कीप इन माइंड वो इम्पैक्ट नहीं है, बेहतर होना शुरू हो जाए. एंड देन लास्ट थिंग ही सेज एफर्ट इज द टॉप पर. एफर्ट जो है ना लिस्ट की टॉप पे है, तो अल्लाह ताला कहते हैं डू योर बेस्ट, डू योर ऑप्टिमल मैक्सिमम बेस्ट एंड लीव द रिजल्ट्स इन माय हैंड. आप जितना भी अच्छा पढ़ के आ जाएं, राइट, आई एम नॉट सेइंग उसके लिए पढ़े नहीं, बट एट टाइम्स हम कहते हैं कि यार मैंने मेहनत तो बहुत की थी, मैंने सवालात तो सारे आंसर किए थे, मुझे मिस तहसीन ने तो अच्छे मार्क्स क्यों नहीं दिए? सॉरी तहसीन, आई एम फोकसिंग ऑन यू अ लॉट. But then again, हमसे being Muslims, being इंसान, expectation ये है कि आप अपना 100% efforts दीजिए and then you leave the results to अल्लाह ताला. और definitely जो genuine मेहनत होती है उसका result मिलता है, positive मिलता है देर सवेर. So ये कुछ pursuits in life हैं, अगर ये हम correct कर लें तो मेरा ख्याल से हम अपना vision बहुत अच्छे से
बना सकते हैं। He also said कि जो हमें अपने आप को पुश करना है towards a better us each day, best से बेस्टर से बेटर से बेटर से बेटर। Mediocrity का जो वर्ड है, you know, दरमियाना दर्जे का काम, वो according to him, he says कि it is not meant for us. ह्यूमंस के लिए वो वर्ड बना ही नहीं है, हम हर दिन हमारा मजीद बेहतर हो सकता है। सो नाउ यहाँ तक किसी का कोई सवाल है, फिर हम इस चीज को लिंक करेंगे अपने विजन से। Alia, 1 second, like our meeting is about to end. We all need to resume on the same link and then we'll take the question further. I'll request everyone kindly click on the same link and we will be resuming then. Okay, ma'am. Sure. Thank you. Thank you, Sharik, for coming in. Back. Yeah. Okay, Alia, I guess you can control the screen. Okay. Perfect. I think there is something wrong. I'm not able to do that. ये जो है ना, I think there is something wrong. It's not stuck हो रहा है with me. Okay, you can I move your screen. You can ask me. Can you exactly, please, because there is can a you lot of please problem, do I it for guess. me? I think कुछ हो रहा है. Zoom is still sleeping, or maybe my PowerPoint is still sleeping. No issue. Okay. Okay, let's go on to the vision वाला screen. इसके बाद वाला. Let's just stick to the title only अभी यहाँ तक. Okay, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अभी ये छाड़ जाइए. आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपना कोई vision बनाया हुआ है? And can we know कि what is that vision? Anybody has any vision? Like that can be your future plans, that what you have planned, or आपका मकसद हयात क्या है? The purpose of living. Yes, Annie has a vision. ये मुझे लग रहा है DHS सफा से ज्यादा ना ये फिरोज की मीटिंग चल रही है, आपस में बात कर रहे हैं. Yes, okay. Annie says कि yes, Annie, what is your vision? Ali, you can see all the names on screen. You can ask anyone any question if you would like to add, or like आपको स्टूडेंट थोड़ा जगाना पड़ेगा. Okay. मैं ऐसे लिखा ना, कैमरा ऑन होना चाहिए, so that आपको पता चले कि कौन सो रहा है, कौन जागा है ना. Exactly. आइडिया तो ये True, because वो थोड़ा real sense का वो feeling miss हो जाती है. Yes. Okay. Can I ask? एक्चुअली लिखना पता नहीं, शायद मेरी आई साइट की वजह से मुझे अभी लग रहा है कि मेरे आंखों की वजह से मुझे टाइपिंग में डिफिकल्टी है. मैं आपको वैसे बताऊं मेरा विजन क्या है? जी प्लीज. अच्छा, आप इसको रिफ्रेश करके बेहतर करिएगा, लेकिन you can now truly understand after being in HR, like as I am enjoying each day of HR practices, I believe मेरा vision जो है वो creating an impact to the life जहाँ millions and millions of people would be practicing the in short, the way you can say Simon Sinek is producing the impact to the world. To have such kind of business वर्ल्ड इन पाकिस्तान जहाँ पे हर बंदा अपने बात करने से पहले इतना ना डरता हो टू बी. अच्छा, और मैं बात कर रही हूँ, मुझे नहीं पता इस विजन का वन वर्ड विजन क्या होगा. बी सच अ बॉस जिसके साथ लोग काम करना पसंद करें. बी सच एन एम्प्लॉय जिसके साथ लोगों को कंफर्ट हो. एंड बी अ पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में मेरा अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत हो. तो दिस इज व्हाट माय विजन towards the next 5-10 years are. ठीक है. और इसका और मेरा why क्या है जो कि vision से अलग है. The basic purpose that keeps me moving is I believe कि this is something जो कि doable भी है और जो कि human right भी है, especially in textile sector. जहाँ तक मैंने अपना टेक्सटाइल एक्सपीरियंस किया है, मुझे लगता है ये टेक्सटाइल सेक्टर के लिए जो एक है ना कि बहुत
प्रिविलेज बात बनी है कि अगर आपके बॉसेस अच्छे हों, आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए सपोर्टिव हो, तो आई बिलीव कि टू दैट कीप्स मी मूविंग। ओके ठीक है, हम थोड़ा सा जो स्टूडेंट्स हैं उनको, क्योंकि नसीम ने मुझे परमिट कर दिया टू गिव देम अ वेकअप कॉल। ओके मनी, व्हाट इज योर विजन? मेरा विजन तो बेसिकली यही है कि फर्दर अपने फादर की लेगेसी को कंटिन्यू करना है और बी अ बिगर बिजनेसमैन इन लाइफ। एक बिगर बिजनेसमैन इन लाइफ बनना है, ये आपका विजन है या ये आपका ख्वाहिश है? मैंने ये सोचा हुआ है कि मतलब जितना मेरे फादर ने अचीव किया शायद इससे और ज़्यादा, और इसको मल्टीप्लाई करके इससे बड़ा विजन है मेरा कि मैं ये चीज़ को। Have you written it down someplace? आप नो कहते हैं मैम, कि मैंने इसको मैंने कहीं अपने अब्बा से लिखा नहीं है, लेकिन ये मैंने सोचा हुआ है शुरू से कि मुझे इसको आगे लेके जाना है। ओके ठीक है मनीब, आप हमारे साथ ही रहेगा अपना ये विजन लेके। माइक थोड़ा सर्कुलर ऑफ कर दें। ओके अली आदिल, कैन वी नो योर विजन? Okay, Urva just raise his hand. Urva, Okay. do you want to contribute something? Yeah, I just wanted to let you know my vision. My version of vision, to be specific. So my vision is to be one of the best, not one of the best, the best corporate sales trainer of Asia in the next 5 years. So that is what I aspire for. ओके सो एक को विजन में ही वांट्स टू बी एन एक्सीलेंट बिजनेसमैन, मे बी जो अब्बा ने जितना बिजनेस कर लिया उसको मल्टीफोल्ड करना है। एंड देन अली, यू सेड कि यू वांट टू बी द बेस्ट सेल्स ट्रेनर इन 5 years टाइम। उर्वा, सॉरी उर्वा, यू सेड कि आपको बेस्ट ट्रेनर बनना है इन 5 years टाइम। ओके, वेरी नाइस। हैव यू रिटन इट सम प्लेस and then उसको अपने सामने कहीं लगाया हुआ है, or it is in your mind? Yeah, it's right on the door of my cupboard. Oh, very nice. So what does it say? Can you just spell it out? मतलब read it out अगर आपके सामने के नजदीक है। Exact wordings क्या है? Well, it's written 2025. It's written in digits, 2025. Best sales trainer. That's it. Yeah. Okay. So you have a vision in your mind. You have a timeline to it. But वो जो आपके सामने, देखिए विजन को अपने सामने रखना या लिखना इसलिए भी जरूरी है कि आपको बार-बार रिकॉल होता रहे, राइट? अगेन आई वुड से कि खैर हम थोड़ा सा टॉपिक से हट जाएंगे, बट देन अगर आपने 2025 लिखा है अंडर द सिचुएशन जो ये कोविड का हुआ है, कोरोना साहब का हुआ है, तो यू हैव टू एक्चुअली रीविजिट योर विजन एंड सी कि आपने अगर स्टिल 2025 रखना है तो आपने इसमें क्या ट्वीकिंग करनी है। I have a question right here. Is it necessary to tweak anything in my strategy? Because मेरे ख्याल में जो कि ट्रेनिंग इंडस्ट्री है उसको थोड़ी सी हिट लगी है, I know, but कहीं ना कहीं जितना ग्रो होने का चांस अब ट्रेनिंग इंडस्ट्री को मिला है एज अ होल, मेरे ख्याल में और किसी इंडस्ट्री को इतना चांस नहीं मिला है। सो is it really necessary कि मैं इस सिचुएशन में ट्वीक करूं या इसको वैसे ही रहने दूं और अभी इस तरह से सिचुएशन का फायदा उठाऊं? देखें, ट्रेनिंग इंडस्ट्री का भी जो विजन था ना, फॉर एग्जांपल टू ट्रेन पीपल टू कंडक्ट कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग सेशंस, 100 कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग सेशंस, 100 इन हाउस ट्रेनिंग सेशंस, 100 एक्सटर्नल ट्रेनिंग सेशंस और 15 के करीब 20 के करीब 100 के करीब बूट कैंप्स करेंगे। ये उनकी स्ट्रैटेजी थी। आप कोविड के दौर में यही नहीं कर सकते। दे हैव टू ट्वीक इट and they have to go on to online, they have to go on webinars, they have to go through bite size. So पहले 8 घंटे का ट्रेनिंग सेशन अभी भी खैर होता है, लेकिन अब दुनिया जो है वो बाइट साइज सेशंस पे जा रही है। पहले 100% ट्रेनिंग क्लासरूम में हो रही है, ऑन जॉब हो रही है, अब 70-20-10 का रूल आ गया है, 80-20 के रूल की लोग बात कर रहे हैं। ट्रेनिंग वो दे रहे हैं, they still want to be the best consultant, right? But they are tweaking their strategy to suit the needs. आपको tweak करना पड़ता है, strategy can change. अगर आप स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करेंगे तो आप ऑब्सोलीट हो जाएंगे। सो अनीसा अकरम, let's give chance to my gender as well. Anisa, can you share your vision? Have you made any vision for yourself? देखिए, if anybody has not made any vision, that's perfectly all right. आज के सेशन के बाद हम बना लेंगे इंशाल्लाह। So Anisa Akram, are you there?
Okay, let's quickly. Ikra Habib, would you want to share your vision? Assalamu alaikum, ma'am. Basically, ma'am, I feel like that still I'm on a learning process for the vision of my life. I feel like there are lots of things that are still left that I need to learn about to, accomplish my goals and things. So I feel like the set of vision that I have in my life currently, मुझे पता है कुछ gaps हैं जो कि fill करने हैं life में. Could it be in a professional terms or any other way? So मुझे ये लगता है कि there are things that I'm learning. I've learned yesterday को अगर मैं आज से compare करूँ, and I'm learning for my future too. So for current, the vision is to learn as much as I can and to start my own business on those learning that I have throughout that period. And once I start my own business or something throughout that learning experience, then I'm going to portray all the experiences on that specific goal that I've set. फिर जब अपना business start कर लूंगी तो उस पे भी I'm going to keep on learning and coming up with new ways. So that's the vision. Business क्या करोगे ये सोचा है? Not yet currently because I feel like कुछ gaps हैं जो fill करने, तो मैं उसका answer शायद vision का आज ना दे पाऊँ, but जब वो gaps fill up होते रहेंगे throughout the learning process, then I can come up with an complete answer to that. Okay, is there any timeline you have kept for that? देखिए learning ongoing होती है, लेकिन the learning till you think about a vision कि अच्छा यार अब finally ये business करना है. See, अगर आप गारमेंट्स के बिजनेस में जाते हैं तो मे बी आपको अपनी एक्सपर्टीज किसी दूसरी तरह जाएंगे. अगर आप सेल्स में जाते हैं तो आपको अपनी नेगोशिएशन, कम्युनिकेशन, पर्सुएशन स्किल्स पे मजीद काम करना पड़ेगा to any other competency. So this just the thing is कि you have maybe to sit and just visualize somehow कि कौन सी चीज आपका फोटे है, कहाँ पे आप ज्यादा स्ट्रेंथ फील करती हैं. Let's quickly go back to our slide because हमारे पास time is running short, I believe. हम स्लाइड्स पे जा सकते हैं विजन वाले? I think any और कोई तो हाथ नहीं उठा रहा अभी. I would like. Yeah, ma'am. Yes, Ikra. Yeah, ma'am. I wanted to say, जो आपने पूछा कि what do you feel about it, learning process के ऊपर. I feel like it, as I mentioned just that, I feel like some gaps are there. So I feel like my personality is more introvert personality. So going towards things that are outgoing and all, I cannot pursue it maybe. So my focus for the learning process is to do something for my own business, something that I can go with online. बहुत ज़्यादा चीज़ें online जा रही हैं. So I can come up with a new thing and can pursue something in that. I'm working for that, and to pursue it, I've set few years for that, like 1-2 साल. जिस पर मैं भी काम भी कर रही हूँ. Just after graduation and all, I'm gonna start working on it to learn more about that. And finally, I'm gonna start with something by my own. Pretty nice, pretty nice. All the best to you. Okay. I would just a thought. I would welcome Sharik. He is part of Team Reactive. Sharik, if you would like to add something. Assalamu alaikum. How are you? मैं fine, alhamdulillah. आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र. अच्छा, बेसिकली बात हो रही थी अभी विजन की, तो मैं अपना विजन ही शेयर कर सकता हूँ कि I want to work with some bigger company जहाँ मैं करंटली काम कर रहा हूँ, इससे बड़ी कंपनी में काम करूँ और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को हैंडल करूँ, लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को हैंडल करूँ. तो मेरा विजन यही है, व्हाट आई एम लुकिंग फॉर. ओके, ठीक है. अगर हम अब अपनी स्लाइड पे जा सकें तो शारिक, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपके इसी विजन को लेट्स हेल्प यू रिफाइन इट अ बिट, ताकि सबके लिए भी एग्जांपल हम अपने विजन को कैसे रिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर हम थोड़ा स्लाइड्स पे जा सकते हैं तो इसमें प्लीज. So can you guys see the slides? जी, स्लाइड्स वो स्लाइड चला दें, सारा पॉइंट्स आ जाए. यस मैम. ओके, टिल द टाइम स्लाइड्स आती हैं, अभी सामान मेरे पास अभी आ नहीं रही हैं. व्हेनेवर यू प्लान फॉर अ विजन, आपको बहुत सारी चीजें कॉन्क्रीटली सोचनी करनी पड़ती हैं. आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं? यू आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाट डू आई वांट टू डू इन लाइफ? मेरा पैशन क्या है? क्या चीज मुझे खुशी देती है? क्या काम करके मुझे मजा आता है? क्या अकम्प्लिशमेंट करके मैं रात को बहुत अच्छी नींद, अकम्प्लिश, सेल्फ मोटिवेशन होती है, और मैं बनाया किस मकसद के लिए गई हूँ? व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ? व्हाई एम आई बीइंग क्रिएटेड? मैं इस दुनिया में हूँ क्यों? ये बहुत सारे सवाल हैं. अगर आप लिखना और उसका अपना आंसर करते चले जाएं तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको अपना
इनर डीप डिजायर पता चलेगा कि आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। एंड इफ यू अग्री, हर दफा सोचने के बाद वही चीज निकल कर आती है, जिस तरह शारिक ने कहा कि जी मुझे एक बड़ी कंपनी ज्वाइन करनी है, और हर दफा एनालिसिस के बाद यही चीज निकल कर आती है कि भाई बड़ी कंपनी ज्वाइन करनी है, बड़ी कंपनी ज्वाइन करनी है, या मुझे एक मार्केटियर बनना है, या मुझे बेस्ट सेल्स पर्सन ऑफ द वर्ल्ड बनना है, या आपका टारगेट बन गया, राइट? देन यू एक्चुअली हैव टू सी, आपको उसको फाइन ट्यून करना पड़ता है कि आपको इसके बनने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, आपका करंट कंफर्ट जोन क्या है। अभी मैं 4 लोगों से तो बात कर सकती हूँ, लेकिन जो ही कोई सीनियर पर्सन आ जाता है, मिस तेहसीन से मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन जो ही हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आ जाते हैं तो मेरे से 2 लफ्ज भी नहीं बोले जाते। और ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत बड़ा इशू होता है कि हम अपने पेयर से बहुत आसानी से बात कर लेते हैं, एक लेवल अप के मैनेजर से बहुत आसानी से बात कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी सी और सीनियर पर्सन से बात करते हुए हमारा सारा कॉन्फिडेंस कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है, और जो बात हम करना चाहते हैं वो हम नहीं करना पाते। सो इफ यू वांट टू बी द मार्केट लीडर और मार्केट वर्ल्ड बेस्ट ट्रेनर और सेल्स पर्सन, तो यू एक्चुअली हैव टू सी कि उसके लिए कॉम्पिटेंसी क्या रिक्वायर्ड है, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, नॉलेज। तो फिर आप अपने इन 4 एरियाज को अपने विजन से प्लग इन कीजिए, और फिर इन चारों एरियाज पे आप कहाँ खड़े हैं, परफेक्ट सेल्फ एनालिसिस करें, लोगों का फीडबैक लें कि भाई व्हाट डू यू थिंक, मैं किस तरह का कम्युनिकेटर हूँ, डू यू थिंक मैं जब बात करती हूँ तो मैं परसुएट कर पाती हूँ, मैं एक अच्छी नेगोशिएट कर पाती हूँ, तो मेरी बात से कन्विंस हो जाते हो, या मैं झिझक कर रही होती हूँ। आपको ये फीडबैक लेने पड़ेंगे, उनको अंडरस्टैंड करना। आप ये कहना आसान है कि ये तो मुझसे जलता है जलती है तो इसलिए फिजूल बात कर रहे हैं, भले से जलता है जलती है फिजूल बात कर रहे हैं, आई डोंट केयर, राइट, इट डजंट मैटर, बट एटलीस्ट उसको अपनी नोटबुक में लिख तो लो, रिव्यू तो कर लो, मे बी सब कोई खुंदस में आपको सच बात बता गया, एंड देन जस्ट गेट रिड ऑफ दैट हैबिट, मेक अ प्लान, जो भी आपने बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्लान बनाना है वर्क ऑन दैट, क्योंकि जूं आप अपनी वो तमाम टास्क को अचीव करते चले जाएंगे, वो कॉम्पिटेंसीज आप हासिल करते चले जाएंगे, आप ऑटोमेटिकली अपने गोल से, अपने विजन से करीब होते चले जाएंगे। और विजन जब आप बना लेते हैं तो मे बी विजन उतना फ्रीक्वेंट चेंज नहीं होता जितना रोड मैप चेंज होता है। आपने यूनिवर्सिटी पहुंचना है, राइट, और आज जरूरी पहुंचना है, बीच में यूनिवर्सिटी रोड मैप था XYZ ब्रिज के अंदर से गुजर के जाना है, नो, कंटेनर खड़ा हो गया, आप क्या करोगे, कंटेनर के ऊपर से जाओगे, नो ना, वापस भी तो नहीं मुड़ोगे। अगर पढ़ने का वाकई में शौक है तो यू विल फाइंड अ डिफरेंट रूट, अपने रोड मैप में थोड़ा ठीक करोगे सो दैट यू रीच टू योर विजन। सो ये बहुत जरूरी है। नो योर मकसद, जस्ट टू सम इट अप, अपना आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं इसके लिए बहुत थॉरो एनालिसिस करें, क्या चीज आपको खुशी देती है और क्या चीज आपको खुशी देने के साथ साथ दूसरों को भी खुशी दे सकती है, आप उनकी जिंदगी में भी कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये 2 चीजें, एक्सीलेंस और इम्पैक्ट, ना भूल जाएगा प्लीज। और फिर आप अपने विजन के साथ अपनी वैल्यूज अटैच करें। आपकी वैल्यू हो सकती है कि यार जिंदगी में कुछ भी हो जाए, ऑनेस्टी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है, 1 करोड़ रुपए का चालान भरना पड़ जाए, ब्राइब नहीं दूंगा, क्योंकि ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी मेरी वैल्यू है। काम गलत हो गया, बॉस ने नौकरी से निकाल देना है, ब्लंडर मार दिया, लेकिन बता दूंगा, छुपाऊंगा नहीं, ये मेरी इंटेग्रिटी की वैल्यू है। सो हमें अपने विजन के साथ साथ अपना एक वैल्यू सिस्टम भी इंटैक्ट लेके रखना पड़ता है, बनाना पड़ता है, जिन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। और जिन लोगों का वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग होता है और वो उसको प्रैक्टिस करते हैं, अमूमी तौर पे वो लोग ज्यादा आसानी से अपना विजन अचीव कर लेते हैं और जिंदगी में कामयाब भी ठहरते हैं, बिकॉज दे हैव देयर स्टैंडर्ड्स। इट डज नॉट मीन कि आप इनफ्लेक्सिबल हो जाएं, बट यस, वैल्यूज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, और वैल्यूज नीड्स टू बी पॉजिटिव, वरना डिसऑनेस्टी भी एक वैल्यू ट्रेट है। तो बेहतर है कि डिसऑनेस्टी के बजाय ऑनेस्टी इज योर ट्रेट, राइट? एंड इट इज नॉट जस्ट अ बिजनेस जिसके लिए विजन रिक्वायर्ड है, इट इज अनदर पार्ट ऑफ योर विजन इज योर फैमिली। आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए आपका विजन क्या है? I want to be the best son for my family. I want to earn for my family is not a vision, वो आपकी responsibility है, वो आपको करनी है, end of the story। लेकिन मुझे बहुत अच्छा बेटा बन के दिखाना है, फिर ना विजन तो हो गया, कैसे बन के दिखाओगे, you know, क्या करोगे,
अभी क्या करते हो कि जो आपको लगता है कि अच्छे बेटे नहीं हो? फॉर एग्जाम्पल, क्या अभी आप में से जितने भी यहाँ पे लड़के हैं, लड़कियां हैं, व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, व्हाट डू यू डू? आपके लिए खाना कौन लाता है, नाश्ता कौन लाता है? जब आप खाना खा लेते हैं तो घर में टेबल में से बर्तन कौन उठाता है? आपके घर में अम्मा उठाती हैं, आपकी बहनें उठाती हैं। आप लाट साहब की तरह खाना खा के मुंह पहुंच के उठ के जाके टीवी के आगे बैठ जाते हैं, आपके सामने पे चाय का ग्लास पेश होता है। भाई, यू कैन नॉट बी अ गुड सन लाइक दिस, आई एम सॉरी। आजकल तो ऐसे हस्बैंड भी नहीं चाहिए होते जिनके इतने लाल उठाने पड़े, तो वो भी खतरा हो गया आपके फ्यूचर का, राइट? सो इफ यू वांट टू बी द गुड सन, तो यू हैव टू मेक अ पाथ, गाइडलाइंस के भाई एक अच्छा बेटा बनने की क्या जिम्मेदारियां हैं, माँ बाप का ख्याल, इज्जत, घर वालों का ख्याल, घर के काम में हाथ बटाना का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बटा देते हाथ, राइट? तो हम कौन सी बड़ी आला का मखलूक आ गई है? सोशल रिलेशनशिप्स के लिए आपका विजन क्या है? आई वांट टू सर्व दी कम्युनिटी। कैसे? हजारों एवेन्यूज हैं। आपका फोटो क्या होगा? आपका पैशन क्या हो गया? फ्रेंड्स में आई वांट टू बी द बेस्ट, कूल, प्रेस्टीज नहीं, अपनी वैल्यूज की बुनियाद पे। समबडी जो भी मसला हो तो वो कहें कि यार आई वांट टू गो टू फरजान एंड टॉक टू हिम बिकॉज आई नो वो मुझे ऑनेस्ट एडवाइस देगा, आई नो वो जेन्युइन है, आई नो वो एम्पैथेटिक है। आप ये इमेज कैसे बनाएंगे? और इमेज बनाने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, जेन्युइन बनाना चाहिए, वरना आप खुद मसले में पड़ जाते हैं। सो ट्राई एंड डिवाइड योर लाइफ इनटू 2 to 3 एरियाज। करियर, एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम एजुकेशन। आप जो पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? कहीं और एडमिशन नहीं मिला तो यहाँ आ गए, चलो अगर ऐसा भी था कोई मसला नहीं है, अब क्या करना है? यू नो, दिस विल लिंक टू द लास्ट पार्ट जो कभी हम इसके साथ मर्ज कर देते हैं, बिंज लर्निंग। व्हेन यू टॉक अबाउट बिंज ईटिंग, जिस तरह होता है ना, ये बेसिकली ईटिंग डिसऑर्डर होता है। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नोस एनोरेक्सिया, बुलिमिया, जिसमें बुलिमिया में बिंज ईटिंग होती है। आप खाते रहते हैं, देन आप वॉमिट, उंगली डाल के सब निकाल देते हैं, आपकी भूख भी मर जाती है, सेटिस्फेक्शन भी आ जाती है। बट लर्निंग का थोड़ा पॉजिटिव ले लेते हैं कि व्हेन यू रीड मोर देन दैट यू आर रिक्वायर्ड। आपकी जो कोर्स की किताबें हैं, आप उनसे हट के भी पढ़ रहे हैं, आप सोशल साइंसेस पढ़ रहे हैं, आप मैनेजमेंट साइंसेस पढ़ रहे हैं, आपको आपके टीचर्स ने, आपके साथी ने कोई असाइनमेंट दिया हुआ है, बट देन यू लॉग ऑन टू द नेट इन योर फ्री टाइम और आप एचबीआर की केस स्टडीज पढ़ते हैं या XYZ जर्नल की पढ़ते हो, राइट? आप उनके ऊपर काम करते हो, ये आपका स्किल एनहांसमेंट है, ये आपका बेंच लर्निंग है। हम सारा वक्त, मुझ समेत सारा वक्त फेसबुक पे रहते हैं, तो लॉकडाउन ने बिल्कुल ही मत मार दिया। इतना ढेर सारा वक्त हम फेसबुक पे रहते हैं, और आई एम नॉट सेइंग आई एम डिफरेंट, आई एम डूइंग द सेम थिंग, बट द पॉइंट इज maybe I need to improve as well and we need to improve as well कि हम फेसबुक को कंस्ट्रक्टिव कर लें। हम जितनी भी इसमें वीडियोस आती हैं, टॉक्स आती हैं, टेड टॉक्स आती हैं, हम उनको सुनना शुरू कर दें। वो हमारे विजन को हासिल करने के लिए हमें किस किस्म की कॉम्पिटेंसीज डेवलप करनी है, उसमें हेल्प करेगा। सो इट इज इन योर हैंड कि आप क्या सीखना चाहते हैं, सिर्फ कोर्स की किताबें या मजीद भी। देखिए, जो कोविड की सिचुएशन है ना, इसके बाद जिंदगी बहुत टफ है फॉर द फ्रेश ग्रेड्स। जो एक्सपीरियंस लोग इंडस्ट्री में बैठे हैं वो भी आज फंसे हुए हैं, क्योंकि बिजनेस श्रिंक है, उनको नहीं समझ आ रहा कि उनकी जॉब होगी कि नहीं होगी। कंपनी उन लोगों को रखेगी जिनकी कॉम्पिटेंसीज हैं, और जो 2 लोगों का काम उनको 8 घंटे में करके देंगे, दैट्स अबाउट इट, इतने वो कॉम्पिटेंट लोग हैं। तो उस सूरत हाल में जो फ्रेश ग्रेड्स हैं उनकी जिंदगी काफी मुश्किल होने वाली है। बट इफ यू कम टू द इंटरव्यू एंड यू टेल द रिक्रूटर के भाई, अपार्ट फ्रॉम द कोर्स आउटलाइंस, ये मेरे पर्सनल इनिशिएटिव्स हैं टू एनहांस माय लर्निंग, आपका +1 हो जाएगा कंपेयर टू एनी अदर कैंडिडेट जिसने सिर्फ कोर्स लाके 3.4 या 4 GPA लाके दिखा दिया। सो बिंज लर्निंग करें, सीखें, जितना अच्छा सीख सकते हैं। फेसबुक पे शायरी, फजूल की मीम्स शेयर करने के बजाय, टैग करने के बजाय, यू नो, लर्निंग वाली चीजें शेयर करें। दैट इज रियली गुड। अपने आप को इस पे कायल करें कि यार मुझे मजीद बढ़ना है, अपना विजन बहुत क्लियरली डिफाइन करें, राइट? और बिंज लर्निंग करें, सीखें, जितना पढ़ सकते हैं। ये आइडियल टाइम है आप लोगों के पास, कोई नौकरी की जिम्मेदारी नहीं है, एंड आई एम श्योर घर की भी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, मेजॉरिटी ऑफ अस पे, राइट? सो अगर है भी तो जस्ट मैनेज, बिकॉज कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तकाजे बहुत बहुत डिफरेंट होते हैं, बहुत इट्स फन बट इट्स हेक्टिक। तो अभी आपके पास टाइम है टू ग्रूम योरसेल्फ, टू मेक योर विजन, फैमिली का विजन, पर्सनल लाइफ का विजन, पैशन का विजन, रिलेशनशिप्स का विजन, एंड हाउ यू कैन change lives of other for to serve humanity। 4-5 एरिया आइडेंटिफाई करें, विजन बनाएं, उसको सामने लिखें, टाइमलाइन लिखें, रोड मैप बनाएं, और जहां सिचुएशन चेंज होती है रोड मैप थोड़ा ट्वीक करते जाएं, एंड यू विल अल्टीमेटली रीच योर
vision. So I've covered both bench learning and vision. Let's quickly wrap up the corporate ethics in the next time available. Okay, can we have the slide please? मेरे पास अभी वो slide समय खुल नहीं रही. आपने slide share किया है? I can't hear it. The slide share is on. But मेरे पास सिर्फ एक A लिखा हुआ आ रहा है. Can you see the slide? The vision slide? No. Okay, we can just talk about it. See, corporate ethics में पहले होता था, अभी भी बहुत सारी कंपनीज में होता है. अगर आप किसी बहुत ही हाई फाई यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं और आपका 4 GP है, 3.5 GP है, whatsoever, तो लोग आपको हाथों हाथ देते थे. हाँ, the screen is better. तो लोग आपको हाथों हाथ देते थे कि यार लम्स का ग्रेड है, हार्वर्ड से पढ़ के आया, इसको उठा लो, ये पता नहीं क्या चीता कर देगा. Oh, thank you so much, that is it. पॉइंट इज, ये नेक्स्ट पे चले जाए. ये विजन हो गया हमारा. लेट्स गो टू कॉर्पोरेट एथिक्स. एक स्लाइड और. ओके, ये सारी लेंथ हम इकट्ठे बात कर लेंगे. ओके, परफेक्ट. 8 आएंगे. ओके, अब कॉर्पोरेट एथिक्स में या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपकी एंट्री पॉसिबल है इफ यू हैव द राइट एटीट्यूड. अगर वो आपको आपकी डिग्री और जीपी और यूनिवर्सिटी के नाम पे रख भी लेंगे, द मोमेंट यू स्टार्ट डिस्प्लेइंग अ बैड एटीट्यूड, नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड, आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाएंगे, आप क्रिटिकल थिंकिंग के बजाय लेटरल थिंकिंग पे, टिपिकल फरसूदा जमाने के थिंकिंग पे काम करते रहेंगे, आप चेंज को रेजिस्ट करेंगे, आप लीडरशिप क्वालिटी साथ लेके नहीं आते, आप वही नॉन टेक्नोलॉजिकल माइंडसेट लेकर आते हैं कि जी क्योंकि उसमें आपकी एक्सपर्टीज है, उसमें आपका कंफर्ट जोन है, आपका कम्युनिकेशन एट पावर नहीं है, एट पार नहीं है. आप जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से लेके आ जाएं, देयर विल बी अ टाइम विद इन 1 year ऑफ योर जॉब जहां कंपनी आपको थैंक यू बोल देगी. व्हाई? बिकॉज कंपनी कैन नॉट स्पॉइल देयर कल्चर जो उन्होंने इतने अरसे में डेवलप किया होता है जस्ट टू अकोमोडेट हार्वर्ड रिटर्न कैंडिडेट और IBA रिटर्न कैंडिडेट और XYZ कैंडिडेट फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी. बिग नाम्स, नॉर्मल नाम्स, हर इदारा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो तालीम दे रहा है, तो नेम्स डू मैटर बट देन दे डू नॉट मैटर. सो हमारे पास आइडियल टाइम है कि हम अपनी कॉम्पिटेंसीज को रिव्यू कर लें. मेरा कम्युनिकेशन कैसा है? हमें जो फ्रेश ग्रेड से तहसीन, आई कैन टेल यू, क्योंकि आप लोग हमारा टूल है टू गाइड दिस पीपल. हमें जब हम फ्रेश ग्रेड्स को इंटरव्यू करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम डज नॉट हैव स्किल ऑन रिटन कम्युनिकेशन, जिसको मैं बहुत ही क्रूड टर्म में कहती हूँ, लोगों का दिस एंड दैट क्लियर नहीं है. सो दिस इज द हाई टाइम कि आप देखें, आप जब ऑफिस में आ जाएंगे ना, ऑफिस ने आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग पे नहीं भेजना कि आपके लिए 6 माह का लैंग्वेज कोर्स करा दें. ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. जरूरत होगी तो करा भी देंगे, राइट? बट आपके पास आइडियल टाइम है टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स. रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत क्रिटिकल हैं. हमारा ग्रामर, हमारा दिस एंड दैट, सेंटेंस फॉर्मेशन, मतलब प्रिसाइज वे में आगे कैसे फॉर्मुलेट करना है, ये बहुत जरूरी. आइडियल टाइम है आप लोगों के पास कोर्सेज ज्वाइन करें. अगर ये वीक एरिया तो इसको इम्प्रूव करें. verbal communication, like because they're all BBA 8 students, they're about to land in the market. Like by this end of 2 months, they would be graduated, they would be landing in the market. So communication skills, it's the high time for them as well, both the written as well as verbal. They should be knowing how to do that. Yes, 2 month बहुत है, 60 दिन है, तारीख टाइम है. ऑनलाइन क्लासेस के अलावा, असाइनमेंट्स करने के अलावा कुछ नहीं करना. और असाइनमेंट्स जो रिटर्न होती हैं, यहाँ पे तो बेस्ट चांस है कि अपना रिटर्न कम्युनिकेशन इम्प्रोवाइज करो, राइट? और वर्बल कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्डअप करें. नहीं है तो लोगों से बात करें, शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करें, कहीं से कोचिंग की ट्रेनिंग ले लें. कॉन्फिडेंस इज गोइंग टू विन वॉर्स फॉर यू, स्पेशली पोस्ट कोविड. क्रिटिकल थिंकिंग, एक हमने एक अपना एक एक्सपेरिमेंट एज वेल, लेकिन हमने लोगों को 4 तीलियां दी और बोला कि यार इनसे कोई शेप बनाओ. और बल्कि 9 डॉट्स से वी गिव 4 स्टिक्स एंड से कि इससे जो है ना तमाम डॉट्स कवर कर दो. तो सबसे पहले जो लोगों का था ना, उन्होंने 4 तीलियों को लेकर स्क्वायर बना दिया. क्योंकि हमारे साथ 4 तीलियां जहां जाएंगी, हमारे जहन में डब्बा ही आएगा. दिस इज नॉट क्रिटिकल थिंकिंग. यू हैव टू थिंक बियॉन्ड इट. You have to think कि एक ही सिचुएशन के, एक ही प्रॉब्लम के सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके क्या आ सकते हैं. सिस्टम में, लाइफ में कोई चेंज आता है, आप उसको कैसे लेते हो? आप रेजिस्ट करते हो, कंप्लेन करते हो, शोर शराबा करते हो, या आप कहते हो अच्छा यार अब तो ये हो गया, अब कोविड हो गया ना,
अब क्या करें, ये शर्मा जाएंगे क्यों हो गया, या अपनी लाइफस्टाइल को उसके साथ एडजस्ट करें। पहले बहन भाइयों की शक्ल दिन में 5 मिनट देखने को मिलती थी, टेंशन कम थी, अब सारा वक्त एक दूसरे के सर पे सवार है। गुस्सा आएगा, टेंशन होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी, इरिटेशन होगी, तो क्या करेंगे, कैसे फ्लेक्सिबल रहोगे? इनिशिएटिव्स क्या ले रहे हैं अपनी जिंदगी में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, दूसरों की जिंदगी में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, उस पर बात करें, वो करें। आप कितने रिलायबल हैं, मैं आप पे कितना रिलाई कर सकती हूँ, मिस्टर आप पे कितना रिलाई कर सकती है कि यार मैंने इनको 4 असाइनमेंट्स दे दिए, they're not going to go on to the web and do the छापा। अब तो प्लेजरिज्म का भी वो सॉफ्टवेयर आ गया, तब बेचारे फंस गए। बट देन दिस मिस्टर यासीन शुड नो कि यू नो मुझे फरजान का, आमिर का जो थीसिस है, जो प्रोजेक्ट है, वो मुझे नेट पे डाल के चेक करने की जरूरत ही नहीं कि उसने चीटिंग कितनी की है। यू आर नोन एज अ पर्सन हु शी कैन ट्रस्ट। दिस इज द क्वालिटी दैट द कॉर्पोरेट वर्ल्ड रिक्वायर्स इन टाइम्स टू कम, अभी भी and more in times to come। लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं है, या आप हमेशा फॉलोअर ही लेंगे? कंपनीज को बहुत थोड़े फॉलोअर चाहिए होते हैं, थोड़े से लीडर चाहिए होते हैं, और लीडर्स वो होते हैं जो एक्सेलेंस और इम्पैक्ट पे काम करते हैं। आप चेंज एजेंट हैं या चेंज रेजिस्ट करेंगे? पता चला मैं आपको हायर कर लूं, कल मैं पॉलिसी चेंज करूं तो पहला झंडा मेरे खिलाफ आप ही लेके खड़े हैं। ये भी रिक्रूटर्स उसको चेक कर रहे होते हैं। वी वांट पीपल हु आर फ्लेक्सिबल एंड दे यू नो ब्रिंग चेंज एंड बिकम चेंज एजेंट। और टेक्नोलॉजी आपको जरूरत है नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट है नहीं है, लेकिन आप कितना इन चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व किए रखते हैं। दीज आर द कॉर्पोरेट एथिक्स, कॉर्पोरेट वर्ल्ड रिक्वायरमेंट, कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट जो कि एटलीस्ट हम फिरोज में जब लोगों को फ्रेश ग्रेड्स को इंटरव्यू कर रहे होते हैं या सीनियर्स को भी, एक्सपीरियंस को भी कर रहे होते हैं, तो हम इन तमाम एंगल से रख के लोगों को एवेलुएट भी कर रहे होते हैं, हम सवाल भी कर रहे होते हैं। तो अगेन जस्ट समराइजिंग द एंटायर सेशन, विजन रखिए अपनी लाइफ के डिफरेंट एरियाज में, रोड मैप बनाइए। रोड मैप स्ट्रिंजेंट नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सिचुएशंस बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं। क्लैरिटी रखिए, क्या काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कोई मसरफ नहीं है तो टाइम ज़ाया नहीं करें। बेंच लर्निंग करें, जितना सीखेंगे, सवाल करेंगे, क्लैरिटी आएगी, आपको अपना लाइफ प्लान करने में मदद करेगी। खुशी को हासिल करने के लिए परसूट ऑफ हैप्पीनेस के पीछे नहीं भागे, वो आपके पास है, आप जिंदा हैं, सबसे बड़ी खुशी यही होनी चाहिए। सांस ले सकते हैं, सबसे बड़ी खुशी ये होनी चाहिए, एज सिंपल एज दैट। पैसा मिल जाता है, जितना नसीब में लिखा है अल्लाह ने आपको देना है, उसके लिए वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज ना करें, उसके लिए भटके ना यहाँ। एंड देन वैल्यू सिस्टम डेवलप करें, कॉर्पोरेट की रिक्वायरमेंट्स, कॉम्पिटेंसीज अपने अंदर डेवलप करें। आई एम श्योर आपका जो करियर है एंड देन योर लाइफ इन जनरल विल बी सुपर 6 इंशाल्लाह। So now I'm open. This is all from my side, and then I'm open for any questions. Bench learning मैंने पहले किया। मैम मेरा एक जनरल क्वेश्चन है, जैसे मिस्टर यासीन ने भी मेंशन किया, विद इन इंशाल्लाह 2-3 मंथ्स हम सारे इवेंचुअली ग्रेजुएट हो रहे होंगे, एंड सीइंग द सिचुएशन राइट नाउ, यानी एक आई डोंट नो रूमर है, सही सिचुएशन है कि अभी ऑलमोस्ट मेजॉरिटी कंपनीज ने हायरिंग वगैरह रोक दी हैं, एंड यू नो बहुत ज्यादा डाउनसाइजिंग चल रही है। तो मैम जैसे अब हम लोग स्टूडेंट्स हैं, तो इसमें सही है स्किल्स वगैरह तो हम लर्न करें, लेकिन व्हाट अदर एडवाइस वुड यू गिव कि इसको किस तरह कोप अप करें? बिकॉज एक मेंटल प्रेशर तो मैम एग्जिस्ट करता है ना कि इंशाल्लाह ग्रेजुएट होना है, जॉब के लिए अप्लाई करना है, लेकिन अब जब हायरिंग ही नहीं आ रही तो एक वैसे बंदा डिप्रेशन में चला आता है उस वक्त, यू नो मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ कि यार मुझे अभी तक जॉब क्यों नहीं मिली या कहीं से जवाब वगैरह क्यों नहीं आया। सो व्हाट वुड यू एडवाइस फॉर दैट? देखो फरजान, ये बहुत एक हार्श रियलिटी है कि जिनके पास नौकरियां हैं वही भी खतरे में पड़ी हुई हैं, ना कि फ्रेश ग्रेड्स के लिए। देयर विल स्टिल बी पीपल जो कहेंगे कि यार अच्छा ठीक है, एक्सपीरियंस महंगे बंदे को निकाल लो, फ्रेश को उठा लो, थोड़ा बहुत ट्रेन कर देंगे। आपका जिस तरह मैंने कहा ना, जस्ट हैव दिस फेथ, आपका रिस्क कंपनीज के हाथ में नहीं है। yes, आपका रिस्क अल्लाह ताला के हाथ में, व्हेन द टाइम इज राइट वो आपको दे देंगे, आपको पेशेंटली काम करना है। जो हम कहते हैं ना कि जिस शारिक ने भी कहा मुझे एक बड़ी कंपनी में काम करना है जहाँ पे मैं ज्यादा लोगों को मैनेज करूँ। बड़ी कंपनी में काम करना है, क्यों करना है, वहां नौकरी क्यों ढूंढ रहे हो, उसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर लो, उसको कॉम्पिटेंसी सिस्टम बनाओगे। नाउ यस जॉब्स नहीं है मार्केट में, स्टार्ट एक्सप्लोरिंग कि अगर जॉब्स नहीं है तो क्या है, ऑनलाइन क्या अवेलेबल है, घर बैठ के क्या कमा सकते हो। yes, यू नो दुनिया के किस मुल्क में क्या हो रहा है जहाँ पे सिचुएशन थोड़ी बेटर है, वहां पे तुम्हारी स्किल, फरजान आपकी स्किल कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। सो 9 to 5 ये जो है ना बॉक्स, चकोर 4 तीलियों का 9 to 5 जॉब, इससे बाहर निकलिए। अब कोविड, पोस्ट कोविड के बाद सिचुएशन फर्क है, व्हाट यू कैन डू,
अगर आपने मार्केटिंग में जाना था तो आई एम श्योर कि आप अपनी मैनेजमेंट और मार्केटिंग की स्किल्स कर रहे थे। अब सिचुएशन फर्क है, मे बी कल को आपको मार्केटिंग में जॉब ना मिले, एडमिनिस्ट्रेशन में मिल जाए, तो क्या नहीं करोगे? ये तो मैंने पढ़ा नहीं है, ये तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है। यू हैव टू टेक इट अप and mold yourself accordingly. So look for different options. LinkedIn पे बहुत सारी आजकल डिस्कशंस चल रही हैं जहाँ पे लोग अपनी जो ले ऑफ हुए हैं वो अपनी ऑन जॉब जॉब्स के बारे में बता रहे हैं। दे आर इतने ढेर सारे एंटरप्रेन्योर्स पैदा हो गए इस टाइम फ्रेम में। यस मैम, उन्होंने काफी सारों ने तो फ्री कंसल्टेशन भी स्टार्ट करी हुई है लोगों के लिए। यस देखो ना, आपकी पढ़ाई मतलब आई एम सॉरी, मतलब इट्स अ जनरल क्वेश्चन, हमारी पढ़ाई का खर्चा किसने उठाया? हमारे अम्मा अब्बा ने उठाया। यस मैम। ऐसा ही है ना, हमारी रोटी पानी का खर्चा कौन उठा रहा है? हमारे अम्मा अब्बा उठा रहे हैं, 4 महीने और उठा लेंगे। कौन सा हमारी तनख्वाह से पूरा घर चलाना है? वो बैठे हुए के बेटा कमा के लाएगा तो फिर मैं रोटी बनाऊंगी, ऐसा नहीं है। सो टेक योर टाइम, गेट आउट ऑफ दिस फियर कि जॉब नहीं मिली तो क्या होगा। अरे भाई कुछ नहीं होगा, मिल जाएगी, जब टाइम आएगा यू विल सर्वाइव। लुक फॉर ऑप्शंस, अदरवाइज तो यू नो जिस तरह राइज अबव योर फियर्स एंड चूज द पाथ टू सक्सेस वाइजली। आगे कंटेनर है, उसके बाद आपका हदफ है जॉब लेनी है, कंटेनर है, क्या करोगे? कंटेनर के इस पर खड़े रहोगे या डिफरेंट तरीके ढूंढोगे? मे बी यू कैन क्रिएट जॉब्स फॉर पीपल, मे बी यू कैन क्रैक एन आइडिया कि आप लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करते हैं ऑनलाइन। All those people who lost their jobs, thousands of them, you come up with a brilliant idea and say कि यार ये करेंगे, ऑनलाइन बैठ के करेंगे, वर्क फ्रॉम होगा, ये 1000 लोग जो जॉबलेस हुए थे इनको भी जॉब मिलेगा। Why can't you guys think? Why can't we think in that way? Yes ma'am. सोचने के लिए थोड़ा लायमल तय करना पड़ेगा, and it can happen. Thank you ma'am. Thank you. Yes, Urva. I have a question. जी। And that is कि आपने जैसे बोला कि अगर रास्ते के बीच में कंटेनर खड़ा हो तो कंटेनर के ऊपर से चढ़ के जाना होगा, जाना नहीं होगा, मतलब कोई दूसरा रास्ता चूज कर लोगे। I just wanted to ask कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती जैसे अभी है, और मुझे पता है कि यार इस टाइम पे लेट्स टॉक रियलिटीज ना, मैं ज्यादा देर तक घर पे नहीं बैठ सकता, और मुझे जॉब की जरूरत है, सही है? क्योंकि ऑब्वियसली देयर आर अदर रियलिटीज एज वेल। अगर मुझे शादी मेरी होती है तो मुझे घर चलाना है, उसके बाद ऑब्वियसली अगर मेरी शादी होती है तो मेरा खर्चा मेरे अब्बा नहीं चलाएंगे, व्हिच इज वेरी ऑब्वियस। सो फिर क्या ये हो सकता है कि मैं अपना विजन चेंज कर लूं? डिपेंड करता है विजन क्या रखा है। आप कर सकते हैं अगर आपके पास उस विजन को हासिल, वो विजन फिर उस टाइम इस टाइम फ्रेम में वो विजन कैन बिकम अनरियलिस्टिक। पहले रियलिस्टिक था, अब सिचुएशन के मद्देनजर वो अनरियलिस्टिक हो गया है। आप कुछ भी कर लो, आप नहीं कर सकते, तो आपने उसको ट्वीक किया, थोड़ा चेंज किया, इट इज स्टिल योर पैशन। और अगर वो आपका पैशन नहीं है, मजबूरी है, तो आई वुड से कि मेक इट योर पैशन। एनीथिंग जॉब के मामले में जो आपको रिस्क दे रहा है, पैसे दे रहा है, तो सस्टेनेंस के लिए, आपकी फैमिली को रेस करने के लिए, मेक इट योर पैशन। फॉल इन लव विद दैट जॉब, फॉल इन लव विद दैट वर्क। आपको काम करने का मजा आएगा, भले से वो आपकी 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 आइडियल जॉब नहीं थी, आपका विजनरी जॉब नहीं था। Alright. Yes, Fariz. Ma'am, I wanted to ask you something. I had an opinion and I wanted to know if it's correct or not. Ma'am, I kind of feel like developing a vision for myself is like limiting my capabilities. Since मेरे ख्याल से ऐसे नहीं सबॉर्डिनेट बना लिया, I want to be the lead trainer or marketer or whatever, right? And then during the course of time you find out कि जी मैं तो बिजनेसमैन होने के ज्यादा अच्छे जॉब में, तो मे बी आपने इनिशियली वेल थॉट ऑफ विजन बनाया ही नहीं है। So this is how I look at it. आपको विजन लिमिट नहीं करता, आपको विजन अगर आपने प्रॉपरली वेल थॉट ऑफ खंगाल के बनाया है कि what exactly you want from life and why you are here in this world and what you want to do, अगर आपने वेल थॉट ऑफ अ प्लान बनाया है, कंटिजेंसी प्लान बनाया है, तो चांसेस एक कुछ अरसे बाद चल के आपको लगे कि यार ये तो गलत विजन बना लिया है। आपको ये नहीं होता कि गलत विजन बना दिया है, उसके अंदर एड ऑन्स हो सकते हैं। You know, I can be a lead trainer, जो कि मैं इतना बन चुका हूँ, but I have realized I have equal business sense. You can always plug it in. Yes, ma'am. Ma'am, similarly, you gave you said that with time you might be able to change that vision too, if needed, right?
मैम मेरा मैम मेन कंसर्न ये है कि एज वी आर लाइक अशरफुल मखलूकात हमें बनाया गया मैम, वी आर द बेस्ट ऑफ द होल काइंड। तो इसमें मैम वी कैन एक्सप्लोर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज एंड आई डोंट थिंक अ ह्यूमन बीइंग कैन रियली डिटरमिन इन दिस एज, या मैं अपनी एज में डिटरमिन कर सकता हूँ कि व्हाट आई विल बी डूइंग आफ्टर 20 years, या मैं किस चीज में अच्छा हूँ। ऑब्वियसली आई होप कि अगर मैं विजन डेवलप करता हूँ बहुत सोच समझ के, यार मैं समझता हूँ आई एम रियली गुड एट एंटरप्रेन्योरशिप राइट नाउ एंड आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, तो शायद मैं 10 साल बाद उस पोजीशन पे आ भी जाऊँ जो मैं चाह रहा हूँ। लेकिन मेरा मैम क्वेश्चन इधर रुक रहा है कि आई स्टिल फील लाइक कि मेरे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। ऑफ कोर्स आई नो आई एम गुड एट एंटरप्रेन्योरशिप, तो मैं उसको भी परस्यू करूं, लेकिन साथ साथ आई शुड नॉट लाइक राइट इट डाउन समवेयर कि मैंने ये करना है कि एवरी सिंगल डे आई वेक अप एंड सी कि यार मैंने ये करना है। So I'm limiting myself in that. I'm not exploring more possibilities. Okay, that's one perspective, right? I'm okay with your perspective. I respect that as long as आपने 2 से 3 अपने लिए avenues खुले रखने हैं, right? आप बिल्कुल खुले रखें. If that gives you the thrill, आप बिल्कुल वो 3 से 4 avenues अपने लिए खुले रखिए. लेकिन जो भी अपने लिए avenues खुले रखिए, well thought of होने चाहिए और एक रोड मैप होना चाहिए, प्लान ए, प्लान बी एंड प्लान सी होना चाहिए कि व्हाट इफ इट डज नॉट वर्क, तो मैंने इसको ऑल्टरनेट रूट क्या लेना है, ताकि आपको अभी से पता हो और जब अगर खुदा ना खास्ता कुछ हर्डल आता है तो आप उस वक्त ना सोचने बैठे. तो इफ यू वांट टू कीप 3 avenues open simultaneously and you can manage and they're well thought out, that's pretty much okay. बट यूजली लोग रिकमेंड करते हैं कि आप पहले एक चीज फोकस करें, लेकिन आप जब सीढ़ियां चढ़ते हैं, आपको छत पे चढ़ना होता है, तो आप 2 सीढ़ियां लगा के नहीं चढ़ जाते कि आप उससे हम जल्दी चढ़ जाएंगे, you know, या आप एकदम छलांग मार के नहीं चढ़ सकते. आपको स्टेप बाय स्टेप, आप मैक्सिमम एक जो लेडर है उसको स्किप करेंगे, वो भी खतरनाक होता है, इट्स सेफ्टी हैजर्ड हो सकता है, तो आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं. एक आपने ऊंची पहाड़ी सर करनी है, वो x किलोमीटर की है या हाइट की है, आप उसको भाग के चढ़ लें या आहिस्ता आहिस्ता चढ़ लें, फासला उतना ही है. सो स्टेप बाय, मुझे ऐसे लगता है स्टूडेंट्स को या इवन जो एक्सपीरियंस लोग भी होते हैं उनको थोड़ा सा बहुत कॉशियसली क्राफ्ट करना पड़ता है व्हाट दे वांट टू डू इन लाइफ. व्हाई? बिकॉज आई एम एडवाइजिंग या रिकमेंडिंग कि आप प्लीज अपने विजन के साथ, अपनी वर्किंग के साथ, अपने फ्यूचर के साथ जो एक एक्सीलेंस है के साथ इम्पैक्ट को भी क्लब इन करें. फिर सोचना पड़ता है. यू वांट टू कीप 2, 3, यू कैन मैनेज इट, फेयर इनफ. मैम ओके मैम, अंडरस्टूड. Anyone else? Okay. Anyone who would like? Madam, I want to ask a question. Yes, Sharik. So, madam, according to you, एक great HR professional के लिए वो कौन सी ऐसी 5 core competencies हैं जो आप समझती हैं कि लाजमी एक HR professional में होनी चाहिए? अच्छा, HR प्रोफेशनल की भी बात कर लेते हैं. पहली चीज तो उनको बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, प्रोसेसेस का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. I am not really good in numbers. I'm more of a qualitative person. But then I realized कि HR के बंदे को भी finances में, financial numbers में उतना ही strong होना चाहिए जो किसी finance के बंदे को. It's not exactly accounting and all, but then उसको number reading आनी चाहिए, data interpretation आना चाहिए, and then they need to have that empathetic element as well, ताकि वो employer और employees के बीच में अच्छे से जलन करना चाहिए. And whatever they do, उनको उसका optimal best पे जाना चाहिए. This is like for HR. और other than HR, आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, just do your optimal best. आपको ये पता होना चाहिए कि जी आपका optimal best क्या है. I can share, if I have time, I can share an interesting example with you. हम एक ट्रेनिंग सेशन करा रहे थे, I think it was Leadership Foundation का. So हमने अपने एक हमारा बड़ा सा बोर्ड था, वहाँ पे भी ask people कि भाई तुम ये मार्कर है, सबसे जितना ऊपर लाइन लगा सकते हो ना लगाओ. तो लोगों ने उठाया और उन्होंने जाके पूरा हाथ ऐसे किया, you know, they can see my hand, normal stretch किया, लाइन लगा दी. अच्छा, उसके बाद फिर सारे बैठ गए. देन आई आस्क्ड देम कि अच्छा क्या आप इससे मजीद ऊपर लाइन लगा सकते हैं? तो पहले तो कुछ देर खामोशी, फिर उनमें से एक साहब उठे, उन्होंने पूरे पंजे ऊपर किए, अपने आप को, you know, स्ट्रेच करके जो पहले मार्क उनका यहाँ था वो यहाँ तक आ गया. Then majority of the people did that. उन्होंने पूरा स्ट्रेच किया और मार्क लगा दिया. Then I said कि क्या इससे मजीद ऊपर तुम स्ट्रेच में अपना ये मार्क लगा सकते हो? They were like, इससे ऊपर कैसे लगेंगे? मैंने कहा भाई सोचो, क्या इससे ऊपर तुम मार्क लगा सकते हो? फिर उनमें से एक साहब उठे, उन्होंने लाई कुर्सी रखी, कुर्सी पे खड़े हुए और मार्क लगाया. मैंने कहा वेरी नाइस, क्या इससे ऊपर लगा सकते हो? मुझे लगा कि सबको ना मेरे दिमागी हालत पे शक हो गया. बट देन आई रिपीटेड माय क्वेश्चन, क्या इससे ऊपर लगा सकते हो?
So one of the participant asked me, क्या मैं टेबल यूज कर सकता हूँ? मैंने कहा भाई जो यूज करना है कर लो. वो टेबल लाया, कुर्सी उसके ऊपर रखी और फिर उसने अपने आप को फुल स्ट्रेच करके मार्क लगाया. उसके बाद छाती तो आई कुड नॉट से कि इसके ऊपर जा सकते हो कि नहीं जा सकते. सो आई आस्क्ड हिम कि तुम्हारा ऑप्टिमल बेस्ट क्या था? ये जो टेबल कुर्सी रखने के बाद तुमने किया है, यू मेड एन एफर्ट? नो. या वो जब तुमने आए और ऐसे लगा दिया? So you have to see कि आपका optimal best क्या है. आप किसी भी चीज, ये आपका क्राइटेरिया शारिक होना चाहिए. I have to give in my optimal best. और उस optimal best के लिए जो resources चाहिए, जो guidance चाहिए, जो learning चाहिए, वो हासिल करो. आपका optimal best आ जाएगा. चाहे HR executive हो, चाहे marketing executive हो, finance executive हो, XYZ supply chain का, whatever. That is the trick of the trade. Okay, I would like to add something. Like I would like to thank Ms. Saima Sardar. She's a faculty member of BSc. She's also part, and also Dr. Mavish. Dr. Mavish, would you like to add something? Yes. Okay. Maybe she's not there. Dr. Mavish. Anybody else would like to add something or would like to ask any question from Alia? Ms. Saima is also there. Dr. Mavish is also there. Sharik, thank you for joining us. I would like to add something, Taseen. Can I? Yes, Ms. Saima. I must say thanks to Alia because it was a wonderful lecture and I really enjoyed. And as well as when she was talking about the topic ethics, so that is my domain. And I was literally thinking, and I really learned a lot from you. Thank you so much, Alia. It was a wonderful experience to having you. Thank you so much, Saima. So from the class, guys, Urva, yes, Urva. The point Fariz raised, I would like to put my opinion forward. मेरे ख्याल में the current times, it is dire need for students like us कि भाई हम लोगों के जो है ना वो एक से ज़्यादा visions होने चाहिए. This is my opinion. And vision should be मेरे ख्याल में I learned this from CEO of a reputable company. एंड द गाय सेड कि भाई देखो करियर के लिए जो है ना वो जरूरी है कि जरा रियलिस्टिक गोल्स बनाओ कि 10 साल बाद क्या चाहिए. 10 साल बाद 2 मिलियन तनख्वाह चाहिए, एक अच्छा बड़ा घर चाहिए और एक गाड़ी चाहिए. अब इसके बाद जो है ना वो जाकर और किसी भी तरह से हलाल पे में ये मिल सकता है. So I personally have 3 different visions, 3 different plans, as you said. I have a vision of being a trainer, which is my main purpose, my main goal. Then if God forbid ऐसा कुछ होता है कि मैं वो achieve नहीं कर पाता हूँ and it becomes unrealistic, then I have a business plan, which is I'm pursuing right now. I'm going to be an entrepreneur in that. Then I have 9 to 5 job वाला scene कि भाई अगर फिर कुछ नहीं हुआ तो then I'm gonna go for some marketing की job other than pharmaceuticals because I hate that. So Urva, can I add something आपकी बात से? Yeah, sure. You have one vision and 2 alternative plans. Yeah. Your vision is being the lead trainer, if I got it right. If God forbid that does not work, your plan B is switch to alternate plan B, the business. If that also does not work, Allah maaf kare, so your third alternate plan is the 9 to 5 job, marketing or 9 to 5 job. So आपका जो main passion है, जो अंदर से आता, वो ट्रेनर है. जी, और अगर वो नहीं होता तो फिर आपके बैकअप प्लान्स हैं. I take it in this way. आप उसको भले से 3 विजन कर लो. I have 0 issues as long as you have a plan for each. But if you look at it, आपका passion is training. And then if it does not work, अगर वो आपको पैसे नहीं दे रहा, आपने फैमिली चलानी है, शादी करनी है, सब कुछ करना है, राइट? तो वो अगर आपको उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो फिर आपको डेफिनेटली अकल भी यही कहती है, एवरीबॉडी वुड रिकमेंड कि भाई स्विच टू प्लान बी, प्लान सी, बजाय से कि तुम भूखे मार दो घर वालों को. That's a wise working. Thank you so much. Anyone would like to ask or share anything or add something?
We are just Ma'am, about to end the session. one last question, I'm sorry. Yes, yes, Farzan. मैम जैसे आप खुद माशाल्लाह HR में हैं, तो एक मेरे दिमाग में कंफ्यूजन थी एंड आई ट्राइड टू क्लियर फ्रॉम क्वाइट अ फ्यू दैट फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ सप्लाई चेन मेजर का. सो व्हेन आई अप्लाई टू अ कंपनी ऑब्वियसली मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तो सप्लाई चेन ही होगी, लेकिन इज इट पॉसिबल दैट इवन क्योंकि एक जनरल BBA में हम लोग लास्ट ईयर में आके डिसाइड करते हैं व्हाट मेजर टू डू, तो इज इट पॉसिबल कि मैं सप्लाई चेन के अलावा भी अगर फॉर एग्जांपल मैं आपकी कंपनी में अप्लाई करता हूँ जॉब के लिए, तो मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी में सप्लाई चेन कर दिया एंड उसके साथ भी मैं किसी और HR या मार्केटिंग किसी और फील्ड में भी अप्लाई कर सकता हूँ, वुड दैट बी फाइन? इफ यू आस्क मी फरजान, ये जो अप्रोच है कि मैंने सप्लाई चेन किया हुआ है, कैन आई वर्क इन एडमिन, कैन आई वर्क इन HR, ये बहुत ब्रिलियंट अप्रोच है आई वुड से, और ये नीड ऑफ द आवर है, राइट? कोविड और नो कोविड, ये नीड ऑफ द आवर है. हमें मल्टी डायमेंशनल टैलेंटेड लोगों की जरूरत होती है. वंस यू ज्वाइन एनी कंपनी, तो मे बी वो ऑप्शन नहीं हो कि आपने क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि इस पोजीशन पे फ्रेश लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर हम सप्लाई चेन में देख लें तो प्रेफरेंस हमारा सप्लाई चेन का होता है, राइट? हाँ, आप जब कंपनी में ज्वाइन कर लेते हो, आप एक आध टाइम सप्लाई चेन में निकाल देते हो, तो फिर अगर कोई पोजीशन आती है और आपने अपनी क्रेडिबिलिटी वहां बना ली, तो यू कैन ऑलवेज बी गिवन अ चांस. एंड दिस रिमाइंड्स मी कि अभी जो आप लोगों के पास टाइम है, इतने ऑनलाइन कोर्सेज हैं. अगर आपका HR में इंटरेस्ट है, आपका इन्वेंट्री में इंटरेस्ट, आपका XYZ में इंटरेस्ट है, इतने ऑनलाइन कोर्सेज पढ़े हुए हैं, उनको उस टाइम फ्रेम में. So your CV has कि Farzan has a degree in supply chain management, but Farzan has also an CHRP online or an actual certified human resource diploma as well. So this gives Farzan an edge. हमारे पास जो Annie है, जो Annie is a textile grad. I guess there is a connectivity issue. Alia, are you there? I'm off कर दें आप. But we are just about to end the session. Okay. So I guess Alia would be joining us back. Okay. Thank you everyone for joining in, and hope this session was really informative and useful for you guys, because you being the graduate and you being like just about to enter in the market, this was for you how you're going to see your future, your vision. So the topic, the future me, was more up to this. I would like अगर आलिया इसको एक दफा close करते, but I guess she's having some net issues. She join us in a minute. Otherwise, any other question, any other thing you would like to ask or you'd like to add? Any, you would like to add something? I guess there's an issue. Any, are you there? Yes, no. Okay. So no issues. So we are about to end this session, and best of luck, guys. Hope you are having a great weekend ahead. And this lecture, all the slides will be uploaded then. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Okay. I guess Alia is still not here. Okay, perfect. Hafiz. Okay, she's back. Okay, sorry, I don't know what happened. Alia, Are we done? Are we done? Yeah, Alia, actually students are having another class as well. So we are about to end the session. Any last remark, notes? Just be good to yourself, be good to others. दूसरों के लिए रास्ते साफ रखें, आपके अपने रास्ते साफ होते लग जाएंगे. Focus in life. Ideal time to groom yourself.
and wish you all the best. Thank you so much, Alia, for joining and giving us such an informative lecture. I was just sharing with the students, like on a very short notice, you have came and you have like given us their vision, like what their vision should be. Because after this situation, like just after 2 months, they would be graduated, they would be in the market, and how they are pursuing and how they are going to go with their vision. It's all up to them. Thank you so much again for giving us the insights. Come again, last time, Kya bola? Sorry? I didn't get the last part, what you said. I was like, we are just about to end the session. Okay, thank you so much. Take care and stay safe. Thank you. Okay, Khuda Hafiz, Alia. Khuda Hafiz. Thank you everyone for joining us.